ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਇਆ, ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 4 ਮਰਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 5 ਮਰਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਮਰਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ
कोई व्यक्ति है जिन्हें चर्च आते हुए परमेश्वर गल्लां करदा होगा? और रास्ते विच जाते हुए परमेश्वर गल्लां करदा सी। याकूब जदों अपने घर नूं छड्ड के अपने मामे दे घर गया, रास्ते दे विच परमेश्वर ने उहदे नाल गल कीती। याकूब एक स्थान के उत्ते सो गया और उन्हें की देखा, एक सोने की सीढ़ी लगी हुई है, एक सोने की पौड़ी लगी हुई है और वो धरती तो स्वर्ग तक लगी हुई है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पौड़ी से चढ़ते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग तो थल्ले उतरते हैं। याकूब ने उस जगह ते प्रार्थना की। जब याकूब ने दर्शन देखा, याकूब ने प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू मैनू अपने अंकल दे घर, अपने मामा दे घर तू मैनू पहुंचा दवे, उत्थे मेरी रखिया करे और मैनू सही सलामत लेके वापस आए, तो मैं तेरी इस जगह ते वेदी बनावांगा और मैं तेरे नाम नूं ऊंचा करांगा। याकूब ने मन्नत मंगी। याकूब एक वायदे विच आ गया परमेश्वर दे नाल, याकूब एक कॉन्ट्रैक्ट विच आ गया परमेश्वर दे नाल। और याकूब जदों गया, परमेश्वर दा फेवर याकूब दे उत्ते सी। बोलो आमीन। याकूब ने परमेश्वर दे फेवर नूं पाया, याकूब ने परमेश्वर दे फेवर नूं पाया। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं तुसी मंगना नहीं है, तुसी मंगना है, पर उसके अंदर परमेश्वर की योजना होनी चाहिए। उस चीज के अंदर परमेश्वर की योजना होनी चाहिए है। मेरी गल नूं ध्यान दे नाल सुनो। मैं तुहानू पुछया तुसी तुहानू की चाहिदा है? इस भैन ने कहा गड्डी दे घर, लेकिन इन्हें ये नहीं दस्या केड़ी गड्डी चाहिए है, केड़ी कंपनी दी चाहिए है, किन्ने ओदा हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए है, इन्हें ये नहीं दस्या। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। हालेलुया। मैं तुहानू पूछा सब तो महंगा, तुहाडे विचों किसी ने कुछ महंगा नहीं मंगिया, मैं मंगिया अपने पिता दी औकात दे हिसाब दे नाल शॉपर, हेलीकॉप्टर। वो राजा का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके अंदर देने की सामर्थ है। पिछले दिनों च मैं दर्शन देख रहा सी, मैं की दर्शन देखा, इस जगह के उत्ते डुगरी पिंड दे विच बहुत बड़ी बंदगी हो रही है और मैं चॉपर दे विच थल्ले उतर रहा हाँ। मैं देखा एक हेलीकॉप्टर थल्ले उतर रहा है, वो चॉपर थल्ले उतर रहा है। तुसी नहीं जानते परमेश्वर दे विच किन्ना करन दी सामर्थ है, तुसी नहीं जानते परमेश्वर की कर सकता है, तुसी नहीं जानते इस चीज नू। मैटर चॉपर नहीं करता, मैटर परमेश्वर की प्रेजेंस करती है। परमेश्वर की जिथे प्रेजेंस है उथे परमेश्वर अपने लोगों को उच्चा करता है, उथे परमेश्वर अपने लोगों की महिमा को बनाता है, उथे परमेश्वर उच्चा करने वाला परमेश्वर है। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल रहोगे, अगर तुसी परमेश्वर दे नाल चलोगे, मैं परमेश्वर का याजक दा तुहानू कहना हां, बरकतां तुहानू पिछे पै के मिलणगियां। जो कुछ भी तुहानू चाहिदा है तुहानू मंगण की लोड़ नहीं पएगी, तुहानू मिलदा ही चला जाएगा, क्योंकि असीं परमेश्वर दे अंदर विच रहण वाले लोग हैं। जदों असीं प्रार्थना करते हां, एक दिन परमेश्वर ने मेरी वाइफ नू कहा एक कलीसिया रिच कलीसिया कहलाएगी। हालेलुया। अगर आज तुहाडे कोल कुछ है नहीं है मैटर नहीं करता, आज तुहाडे कोल कुछ है नहीं है मैटर नहीं करता, आने वाले समय में तुसीं कित्थे होवोगे मैटर ये करता है। पर तुसीं परमेश्वर दे नाल जुड़े रहो और चलते रहो, उहदे नाल चलते रहो, उहदे नाल चलना इंपॉर्टेंट है, उहदे नाल रहना इंपॉर्टेंट है और उहदे पीछे चलना इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरियां भेडां मेरी आवाज नूं सुणदियां हन तां मेरे पीछे चलदियां हन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दी, एक बीज बीजण वाला निकलिया, एक बीज बीजण वाला निकलिया, उन्हें बीज बीजिया, कुछ अच्छी भूमि ते गिरिया, कुछ पत्थरां विच गिरिया, कुछ झाड़ियां च गिरिया और कुछ कावां ने चुग लिया। वो बीज जिहड़ा अच्छी भूमि ते डिगिया वो 100 गुणा फल लेके आया।
ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਉੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਟੀ ਪੱਟ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੀ, ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਟਣੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। जिस दे कान हुण वो सुन लवे आत्मा कलीसिया नूं की कह रहा है। अगर परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे ऊपर है तां तुसी उस अच्छे बीज की तरह वधोगे। अगर एक अच्छा बीज तुहाडे अंदर लगा है, अगर एक अच्छा बीज तुहाडे अंदर लगा है तो तुहाडे हिरदे नूं वो खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर जंगली बूटी लगी है तो वो दुष्ट दा काम है, वो शैतान दा काम है। इसलिए अच्छा बीज परमेश्वर दा वचन, परमेश्वर दा पवित्र वचन जदों तुहाडे हिरदे विच आउंदा है वो तुहानूं परिवर्तित कर दिंदा है। आमीन आमीन। मैं अपने विषय ते आउंदा हां। मैं तुहानूं दस्सिया कि जदों साडे उपर अगर स्वर्ग खुल जावे तां की होएगा, की होएगा अगर स्वर्ग खुल जावे। बरकतां तुहानूं पिछे पै के मिलेगी, जो कुछ तुहानू चाहिए हो तुहानू मिलेगा। आमीन। मैं परमेश्वर दा याजक होंदा तुहानू आखदा हां, तुहानू इस चर्च दे उत्ते स्वर्ग खुला होया मिलेगा। हालेलुया। बाइबल दे विच ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂ ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया हालेलुया। इधर देखो मेरे बाल, वचन च लिखा यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश, इत्थे हिंदी में आकाश लिखा है, इंग्लिश में हेवन है, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। बाइबल च लिखा है यीशु मसीह दे लिए स्वर्ग खुल गया। उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते हुए देखा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ध्यान देना सब। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके प्रभु की आत्मा रिन्यू हुई, पवित्र आत्मा ने प्रभु के ऊपर अधिकार ले लिया। पवित्र आत्मा प्रभु के ऊपर देह के रूप में कबूतर के रूप में उतरिया और वचन च लिखा प्रभु दे लई स्वर्ग खुल गया। तुहानू पता जदों स्वर्ग खुलदा है तुहानू किस तरह दसदे हां, जिस तरह तुसी चर्च विच आउंदे हो, गेट बंद होवे, तुसी अंदर आके आनंद नहीं मना सकते, तुसी बाहर खड़े रहोगे लेकिन अंदर आके आनंद नहीं मना सकते। उसी तरह जदों स्वर्ग दा दरवाजा खुलदा है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ स्वर्ग ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ स्वर्ग ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ स्वर्ग ਖੁੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ?
यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेके पानी दे ऊपर आया ते यीशु मसीह ਲਈ स्वर्ग खुलिया, लेकिन बाकी लोगों ਲਈ नहीं खुलिया। इंडिविजुअल व्यक्ति ਦੇ ਲਈ खुलता है। ਜਦੋਂ परमेश्वर ने आख्या जिस दरवाजे ਨੂੰ मैं खोल दवा ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ बंद नहीं कर सकेगा, और ਜਿਹੜੇ दरवाजे मैं बंद कर दवा ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ खोल नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ਲਈ स्वर्ग खुल गया, और प्रभु यीशु मसीह ਲਈ ਜਦੋਂ स्वर्ग खुलिया तब पवित्र आत्मा प्रभु ਦੇ ਉੱਪਰ आया। पवित्र आत्मा प्रभु ਦੇ ਉੱਤੇ आया, और पवित्र आत्मा प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। अगर ਤੁਸੀਂ ਧਿਆन ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू कर ਦਿੱਤਾ। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी ध्यान दे नाल देखो 17 आयत में पढ़ो। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना शुरू किया, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया क्योंकि है। स्वर्ग का राजा निकट आया है। बोलो आमीन। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, क्योंकि यीशु मसीह ਦੇ ਲਈ स्वर्ग खुल गया ਸੀ, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग ਦੇ ਲਈ प्रचार शुरू कर ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। देयर इज अ किंगडम ऑफ गॉड। एक परमेश्वर ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਫਲ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। समस्या ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਖੋਲ ਦੇ। बोलो आमीन। तुसी नहीं समझदे, तुसी नहीं समझदे, तुसी गल्ला अपने लिए नहीं, तुसी सारियां दे लिए मंग लिया, और परमेश्वर ये करेगा। परमेश्वर ये होण देवेगा, परमेश्वर इस नूं होण देवेगा। और जदों परमेश्वर होण दिंदा है उस समय सिचुएशंस बदल जांदियां हैं। बोलो आमीन। किन्ने लोग दर्शन देखते हैं, हाथ खड़े करो। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। वचन च लिखिया जदों परमेश्वर दे पवित्र लोग ते पवित्र संत प्रार्थनावां करदे हन तां परमेश्वर उन्हां दे नाल दर्शनां दे राहीं गल करदा है। वचन च लिखिया हिजकियल दी पुस्तक 1 अध्याय ओदी 1 आयत पढ़ो। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। हालेलुया। बाइबल खोलो अपनी, हिजकियल दी पुस्तक 1 अध्याय ओदी 1 आयत। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन
मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया, तब स्वर्ग खुल गया, मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। बोलो आमीन। ਜਦੋਂ ਹਿਜਕੀਅਲ ਕਬਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਜਕੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਿਜਕੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਹਿਜਕੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। प्रार्थना स्वर्ग नू खोल दिंदी। बोलो आमीन। सारे ने मिलके बोलो, प्रार्थना द्वारा स्वर्ग खोल जाता है। आमीन। तुसी गल्ला धरती दियां चीजां खोलनियां चाहते हो, तुसी गल्ला धरती दियां चीजां मंगदे हो, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੁਝ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन अगर तुसी परमेश्वर दे नाल चलने वाले लोग हो तो प्रार्थना करते हुए वचन नूं सुनो, अपनी आत्मा च प्रार्थना करते हुए वचन नूं सुनो, अपनी आत्मा च अन्य भाषा बोलते हुए वचन नूं सुनो, ताकि परमेश्वर इस वचन नूं तुहाडे हृदय अंदर इंपार्ट कर देवे और ये वचन तुहाडे अंदर बनिया रहे। बोलो आमीन। अगर तुहानू अन्य भाषा आउंदी है तो तुसी अपनी जीभ दे विच अन्य भाषा बोल सकते हो, लेकिन तुहाडी अन्य भाषा दी आवाज दूसरे बंदे नूं सुननी नहीं चाहिए। अन्य भाषा बोलते हुए तुसी आज दे वचन नूं सुनो ताकि पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आज दे वचन नूं इंपार्ट कर देवे। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय ओदी 51 आयत। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ। फिर उसने कहा, उसने किसने कहा? यीशु ने कहा। इस तरह पढ़ो। फिर यीशु ने कहा, फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को। तुम किसने कहा? उसी बोल नहीं रहे। किसने कहा? किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। किन्हां नूं कहा? सुनने वाले ने कहा। किस नूं कहा? बाहर लोग भी सुनते हैं। किस नूं कहा? सिर्फ चेलियां नूं कहा। सिर्फ किन्हां नूं कहा? सिर्फ चेलियां नूं कहा। हुण पढ़ो कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर। मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। और ऊपर जाते हुए देखोगे। बोलो आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलियां नूं कहा कि मैं तुहानू सच सच आखदा हां। बाइबल च लिखिया धरती ते आकाश टल जाणगे लेकिन यीशु मसीह दे वचन नहीं टलणगे। बोलो आमीन। बोलो ये वचन मेरे जीवन विच पूरा होया। बहुत सारे लोगों ने नहीं बोलिया। बोलो ये वचन मेरे जीवन दे विच पूरा हो जावे,
पूरा हो चुका है। आमेन। हालेलुया। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां ਨੂੰ अधिकार ਦਿੱਤਾ। प्रभु ने कहा जाओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अधिकार ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ और ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਚੇਲੇ ਗਏ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। प्रभु ने कहा इस गल तो खुश ना होवो, इस गल तो खुश होवो कि तुहाडा नाम जीवन दी पुस्तक विच लिखिया होया है। आमेन आमेन। मैं तुहानू पुछदा हां जीवन दी पुस्तक विच जिहड़ा नाम लिखिया होया है वो गाला कटेगा? आवाज नहीं आई, घट आवाज आई। जेदा नाम जीवन की पुस्तक में लिखिया है वो गाना कटेगा, वो लड़ाई करेगा, वो धूम मचाएगा। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह नूं लोकां ने गालां कड्डियां, उन्हें गाल नहीं कड्डी। प्रभु यीशु मसीह नूं लोकां ने मारिया, प्रभु चुप रहे। प्रभु यीशु मसीह नूं लोकां ने धमकी दित्ती, प्रभु चुप रहे। हालेलुया। प्रभु जानते सन मेरा रिश्ता स्वर्ग दे नाल है। धरती दे कम्मां विच फस के मैं अपना रिश्ता पिता दे नाल खराब नहीं करांगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जदों तुहाडे उत्ते स्वर्ग खुल जाएगा, जदों स्वर्ग खुल गया, यू विल रिसीव द पावर, तुसी सामर्थ नूं पाओगे। जदों स्वर्ग खुल गया तुसी दूतां दी प्रोटेक्शन नूं पाओगे। जदों स्वर्ग खुल गया तुहाडे ऊपर स्वर्गदूत आउणगे ते चढ़णगे। बोलो आमीन। जदों स्वर्ग खुल गया ते स्वर्गदूत चिट्ठी लेके आउणगे परमेश्वर दी, स्वर्गदूत परमेश्वर दा मैसेज लेके आउणगे, स्वर्गदूत तुहाडी पहुंचाई लई आउणगे, स्वर्गदूत तुहाडे कोल खाना खाण लई आउणगे, स्वर्गदूत तुहाडे नाल चलण लई आउणगे, स्वर्गदूत तुहानू उच्चा उठाउण लई आउणगे। जदों स्वर्ग खुल जाएगा परमेश्वर दे दूतां दी सेना तुहाडे नाल महिमा करन लई आएगी। हालेलुया। बोलो आई एम ए पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, आई एम ए पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। मैं बोलो मैं परमेश्वर दे स्वर्ग राज दा हिस्सा हां। मैं परमेश्वर दे स्वर्ग राज दी फैमिली दा मैंबर हां। आमेन। राजे दे घराने दा बंदा होवे तां पींदा बीड़ियां होवे, ये हो सकदा? राजे दे घराने दे घर दा बंदा होवे तां 50 रुपए दी रम पी के पींदा होवे तां राजे दे घराने दा है? मैं तुहानू पुछदा, तुहानू कुछ समझ आ रही? कुछ समझ रहे तुसी? ये हो सकता है? किन्ने लोगों को समझ आ रही है? जदों तुसी परमेश्वर दे घराने दे लोग बन जाओगे, जदों तुसी परमेश्वर दी फैमिली दे मेंबर बन जाओगे, फैमिली ऑफ गॉड। दाऊद लिखता है मेरी सहायता यहोवा दे वल्लों स्वर्ग दे विचों आंदी है, जो आकाश ते पृथ्वी नूं बनाउण वाला परमेश्वर।
हालेलुया। जिस दिन ये चर्च बन के कंप्लीट हो गया उस दिन तुहानू गवाही सुनावांगा। परमेश्वर अपने लोगों के नाल रहिंदा है और परमेश्वर उन्हां दी प्रार्थनावां नू सुनदा है। बोलो आमीन। ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ प्रेरितां दे काम 7 अध्याय ਉਹਦੀ 55 आयत। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। किस व्यक्ति ने? इस जगह पे स्तिफनुस है। जेड़ा स्तिफनुस है उन्हें किस दे नाल परिपूर्ण होया? किस दे नाल परिपूर्ण होया? पवित्र आत्मा से। आज का लोग गुस्से नाल परिपूर्ण हो जाते हैं। किहदे नाल? पति पत्नी लड़े, गुस्सा आया पत्नी नूं, जा मैं नहीं चर्च जांदी, कर ला तू करना मेरा। लड़दे आपस में हन तां मिस चर्च करदे हन। परिपूर्ण इस जगह ते कौन होया? स्तिफनुस। पढ़ो। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परंतु स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को। इधर देखो ध्यान देना। जदों स्तिफनुस ने स्वर्ग वाल देखिया, स्तिफनुस ने स्वर्ग वाल क्यों देखिया? क्योंकि वो जानदा सी ਉਹਦੇ ਲਈ स्वर्ग खुला होया। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੂਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਚੱਕ ਫੋਨ ਮਾਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਉਸ स्वर्ग ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਟੀਫਨਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ स्वर्ग ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ बचो। स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। स्तिफनुस ने स्वर्ग वाल देखा और उसने परमेश्वर की महिमा देखी, उन्हें स्वर्ग खुला हुआ देखा और उन्हें परमेश्वर के सच्चे हाथ यीशु मसीह नू खड़ा हुआ देखा और कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ। हुण स्तिफनुस लोकां नू दसदा है, कहंदा मैं स्वर्ग नू खुला हुआ देखदा हां और मनुष्य के पुत्र को और मनुष्य के पुत्र नू परमेश्वर की दाहिनी ओर परमेश्वर के सच्चे हाथ खड़ा हुआ देखदा हां। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया नॉर्मल कलीसिया नहीं रहेगी, इहदा लेवल परमेश्वर अप करेगा। स्तिफनुस परमेश्वर दे अगे कह रहा है कि मैं परमेश्वर नू देख रहा हां और स्वर्ग नू खुला हुआ देख रहा हां, परमेश्वर दे सिंहासन नू देख रहा हां और परमेश्वर दे पुत्र नू ओदे सच्चे हाथ खड़ा हुआ देख रहा हां। आमीन। स्तिफनुस ने ऊपर क्यों देखा? इधर मेरे वाल ध्यान करो। स्तिफनुस ने ऊपर क्यों देखा? स्तिफनुस जानता सी मेरा रिश्ता केवल स्वर्ग दे नाल है। ਜਦੋਂ स्तिफनुस प्रचार करने ਲਈ ਗਿਆ कि स्तिफनुस ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੂਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ। 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ तो साडी टीम दे मगर भजे। लेकिन जदों इन्होंने मैनू फोन किया, मैं इन्होंने कहा उस पिंड नू छड्ड के वापस आ जाओ और मैं परमेश्वर दा याजक हुंदा होया उसे ही जगह दे उत्ते अपने पैर झाड़ दिते। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल रहन वाले लोग हो, अगर तुसी परमेश्वर दे नाल चलण वाले लोग हो, तो परमेश्वर स्वर्ग
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ। स्वर्ग तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आवाज आएगी। यीशु मसीह दे लई स्वर्ग खुल गया और ऊपरों आवाज आई, आकाशवाणी हुई, ए मेरा प्यारा पुत्र है, इसदी सुनो। बोलो आमीन। जब स्वर्ग खुल गया तो स्वर्ग विचों आवाज आई, परमेश्वर की आकाशवाणी हुई, ए मेरा प्यारा पुत्र है, इसदी सुनो। आमीन आमीन। इसलिए ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ प्रार्थना चो हट के संसार दे कम्मां विच लग जावे और तुसी संसार दे कम्मां विच उलझ के रह जावो, तां तुहाडा जिहड़ा फोकस है, जिहड़ा तुहाडा मेन निशाना स्वर्ग है, तुसी उस तो वांझे हो जाओ। उसदा ये काम है। इसलिए अपना फोकस सेट करो। बोलो आमीन। ओ साहिल कोल कैमरा है, जदों इहदा फोकस सेट करेगा, जो फोकस सेट नहीं होएगा फोटो धुंधली आएगी, जो फोकस सेट हो गया तो फोटो तो प्रॉपर आएगी। किन्ने लोगों को समझ आएगी? जो तुहाडा फोकस प्रॉब्लम दे उत्ते है तो स्वर्ग की तस्वीर तुहाडे लिए बहुत धुंधली हो जाएगी। जो तुहाडा फोकस स्वर्ग के उत्ते है तो संसार की तस्वीर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ और स्वर्ग की तस्वीर धरती ते खड़े होके ਤੁਹਾਨੂੰ साफ नजर आएगी। हालेलुया हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ प्रेरितां ਦੇ काम 10 अध्याय ਉਹਦੀ 11 आयत पढ़ो। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। हालेलुया। इज़रा दे पतरस है। कौन है? हुण पतरस ਲਈ भी स्वर्ग खुल गया। हुण पतरस ਲਈ स्वर्ग, पहला स्तिफनुस ਲਈ स्वर्ग खुला सी, ਇੱਥੇ पतरस ਲਈ स्वर्ग खुला है और पतरस स्वर्ग ਨੂੰ खुला हुआ देखता है। पतरस स्वर्ग ਨੂੰ खुला होया देखता है। वचन पढ़ो। जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। हालेलुया हालेलुया। ध्यान दे नाल इस वचन ਨੂੰ देखो। पतरस छत ਦੇ ਉੱਤੇ प्रार्थना कर रहा है। पतरस किथे है? छत ਦੇ ਉੱਪਰ पतरस प्रार्थना कर रहा है। बाइबल लिखिया पतरस ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। पतरस ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। पतरस कुछ खाना चाहता सी और पतरस तैयारी कर रहा सी खाण दी, तो पतरस बेहोश हो गया। पतरस अजे कुछ खाण दी तैयारी करन लगा सी, ਇਹਦਾ मतलब पतरस पूरा दिन या पूरी रात प्रार्थना च बैठा होएगा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ कि खाना खाण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बेहोश हो गया। पतरस ने एक दर्शन देखा। पतरस ने की देखा? आकाश, इतने आकाश लिखा, इंग्लिश बाइबल च हेवन लिखा है। स्वर्ग पतरस ਲਈ खुल गया। बोलो आमीन। स्वर्ग पतरस ਲਈ, ਜਦੋਂ स्वर्ग पतरस ਲਈ खुलिया ਤਾਂ पतरस की देखा कि एक चद्दर स्वर्ग ਵਿੱਚੋਂ आ रही है और उस चद्दर ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ जानवर हैं। उस चद्दर उत्ते कुछ जानवर हैं। उस आकाशवाणी हुई, ऊपरों आवाज आई, पतरस
ਉੱਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਖਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਹਿ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੱਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮਾंस ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਦਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਾਜਕ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਕਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ, ਪਤਰਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਸਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਠ ਪਤਰਸ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਯੂੰਗੀਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Everything will be open, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਿੱਬਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੋਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰਦੇ 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 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੱਗ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 315 ਸਾਲ ਹੈ। उस साधु ने कहा मेरी उम्र 315 साल है और तेरे आउण तो पहला परमेश्वर ने मैनू दस दिता सी साधु सुंदर सिंह तेरे कोल पहुंचाया जा रहा है। उस व्यक्ति ने कहा मेरे ऊपर स्वर्ग खुला होया है और रोज कोई ना कोई नबी स्वर्ग तो उतर के मेरे नाल धरती ते थल्ले आके मेरे नाल बैठ के प्रार्थना करता है। उसने कहा तेरे आउण तो पहला यशाया नबी आया सी, वो मेरे नाल बैठ के प्रार्थना करके गया। हिजकियल नबी मेरे नाल बैठ के गल्लां करके गया है। यिर्मयाह नबी मेरे नाल गल्लां करता है और परमेश्वर वख-वख अपने संतां नूं भेजदा है और मेरे नाल आण के बैठ के प्रार्थना करदे हन। और परमेश्वर ने मैनूं धरती ते इसलिए जिंदा रखिया मैं पूरी पृथ्वी दे लोकां दे लई बैठ के प्रार्थना करा। तुसीं नहीं जानदे तुहाडे लई कौन प्रार्थना कर रहा है। तुसीं नहीं जानते
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर स्वर्ग खुल जाता है, उस व्यक्ति ने कहा कि उसने पूछा तुसी इत्थे किद्दां रहिंदे हो, ना खाण लई कुछ है ना पीण लई कुछ है। उसने कहा आ जड़ियां बूटियां हन, परमेश्वर ने मैनूं दस्सिया सी इन्हां जड़ियां बूटियां नूं खाया कर। और रात कहंदे इत्थे ठंड बहुत है, कहंदे रात नूं 10-15 भालू आउंदे हन, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, जिस संसार बारे तुसी नहीं जानते। आत्मिक संसार ज्यादा ओरिजिनल है और ज्यादा स्पिरिचुअल है संसारिक संसार। हालेलुया। उस साधु ने कहा परमेश्वर ने मैंने एक अलौकिक शक्ति दी है, अलौकिक शक्ति मेरी आत्मा मेरे शरीर चों बाहर निकल सकती है और संसार के उत्ते हर जगह घूम सकती है। हालेलुया। परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। जदों स्वर्ग तुहाडे लई खुल गया, तुसी नहीं जानते परमेश्वर तुहानू किहड़ी सामर्थ नाल भरेगा, परमेश्वर तुहानू किहड़े राज लई इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुहानू किहड़ी स्टेट लई इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुहानू किहड़े देश लई इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुहानू किहड़ी स्पेशली कैटेगरी लई इस्तेमाल करेगा, तुसी नहीं जानते। तुसी सिर्फ ये जानना है कि परमेश्वर दा राज नेड़े आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19 ਅਧਿਆय, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 1 आयत। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। अगर तुसी ध्यान दे नाल इस वचन ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। कौन देख रहा है? यूहन्ना दर्शन देख रहा है। यूहन्ना कहता है मैं की देखदा हां, स्वर्ग विच एक दरवाजा खुला है, स्वर्ग विच एक दरवाजा खुला है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ? तुरी दा शब्द सी। आज तो कुछ साल पहला, 6-7 साल पहला इजराइल दे अंदर, पूरे इजराइल दे अंदर तुरियां दी आवाज गूंज गई सी। ता इजराइली नबी, यहूदी रब्बी, परमेश्वर दे पवित्र लोग ये समझ गए कि शायद यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। उस वेले केवल स्वर्ग दा दरवाजा खुला सा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ। पढ़ दो इन्हों, पढ़ दो 6 आयत। जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। ध्यान इस वचन को सुनियो। वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है।
जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 8 तक पढ़ दो। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने स्वर्ग ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। यूहन्ना ਦੇਖਦਾ ਹੈ स्वर्ग ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। स्वर्ग ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूहन्ना ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, यूहन्ना लिखता है और दसदा है वो की देखिया, कहना मैं परमेश्वर नू स्वर्ग दे विच सिंहासन ते बैठा होया देखिया। और बाइबल दे विच लिखिया है कि परमेश्वर जिहड़ा यशब ते माणिक्य और मणियां दे नाल मरकत दे मेघधनुष की तरह दिखाई दे रहा सी। मैं परमेश्वर नू देखिया, और ओदे चारों पासे 24 सिंहासन लगे हुए हैं, और 24 सिंहासनां दे उत्ते 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, और उन्हां दे श्वेत वस्त्र हैं। जिहड़े 24 प्राचीन बैठे हैं उन्हां दे 24 प्राचीनां दे अंदर 4 करूब हैं, जिन्हां दे 6 पंख हैं, और जिन्हां दे वखरे वखरे मुंह हैं। किसी दा मुंह शेर दे समान है, किसी दा बछड़े दे समान है, किसी दा मनुख दे समान है, और किसी दा मुंह उकाब दे नाई है। और जिहड़े उकाब पक्षी हैं उन्हां दियां अगे पिछे ऊपर थले अखां ही अखां हैं, और वो अखां धरती देखते रहंदियां हैं। हर एक मनुख नूं जांचदियां रहंदियां हैं। परमेश्वर दे सिंहासन दे सामने अग दा एक पूरा सिंहासन लगा है, और अग दे आसे पासे 4 करूब हैं, उन्हां दे आसे पासे 24 प्राचीन लगे हुए हैं, और उन्हां दे आसे पासे स्वर्गदूतां दी सेना लगी हुई है। और वो स्वर्गदूत और वो करूब और वो प्राचीन 24 घंटे पुकारते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो 24 घंटे पुकारते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो 24 घंटे पुकारते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। बोलो आमीन। दाऊद एक प्रार्थना करता है परमेश्वर दे अगे। दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों डिगिया जांदा हां, तू यहोवा दी आराधना कर। परमेश्वर दा नबी आखदा है, हे मेरी आत्मा जाग ते यहोवा दी आराधना कर। हे मेरे प्राण तू जाग ते परमेश्वर दी आराधना कर। हे मेरी आत्मा जाग ते परमेश्वर दी आराधना कर। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ महान नमः जियांद्रला। अगर तुम्हारी आत्मा प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी आत्मा के नाल गल करेगा। हालेलुया। जदों असीं प्रचार भी करते हाँ तद भी असीं प्रार्थना करते हाँ आत्मा दे इन स्पिरिट।
तद ही ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। और जो सामने खोलिया गया है, अगर तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, अगर तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी तो सुते पे भी तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, जागदे होए भी तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, जांदे होए भी तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, आटा गुनदे होए तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, झाड़ू लांदे होए तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, ड्राइव करते हुए तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी। और जब तुहाडी आत्मा ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो परमेश्वर दा आत्मा तुहाडी आत्मा दे नाल गल करेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये आत्मावां दा संसार है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल। कुछ लोग कहते हैं राती एक मुर्दा मेरे सपने च आया सी, मैनू आण के कहना मैं तेरे नाल रहना। कहंदे ना तुसी राती मुर्दे लोग मेरे सपने च आउंदे आ, मुर्दे लोग मैनू मिलदे आण के। आत्मा दे संसार दे अंदर जदों तुसी सौंदे हो तां दुष्ट आत्मावां जे तुहाडी आत्मा परमेश्वर दी आत्मा आराधना नहीं करदी तां होर आत्मा तुहाडे नाल सहभागिता करन दे लई आ जाएगी। जे तुसी अपने आप नूं खुला रखिया है तां कोई बुरी आत्मा तुहाडी आत्मा दे नाल आके बैठ जाएगी, और अगर वो आत्मा बैठ गई तो उस व्यक्ति को भूत चुंबड़ जाता है, तो उन्होंने फिर साडे को लियाना पैंदा है। हालेलुया। इसलिए तुहाडी आत्मा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए है, तुहाडी आत्मा परमेश्वर की स्तुति करे, और जब तुहाडी आत्मा स्तुति करेगी, जब तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, तुहाडे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मैं तुहानू एक होर रास्ता दसदा हां। एक प्रार्थना करने का रास्ता है, एक होर रास्ता है जिहदे द्वारा स्वर्ग खुलदा है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚੱਲ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਇ 10 ਆਏ। Ramah meha zamdalo gaga mana hala baraba Riyamba namana ga ziyamdalo hala maha katrali mindrala lagar yama nama ziyamdala ho rabahal damata। पढ़ो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। परमेश्वर कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा कौन कह रहा है? सारे ने बोलो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। मैं आकाश के झरोखे, इथे थोड़ी ट्रांसलेशन की गलती है। परमेश्वर कह रहा मैं स्वर्ग दे झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, मैं स्वर्ग दे झरोखे तुम्हारे लिए खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं? करता हूं। हालेलुया। जे तुसी दशवांश विच ईमानदार हो, हुण देखो मेरे बारे हुण कहना नहीं देखना। दशवांश विच धोखेबाज किन्ने हैं? हाथ नहीं खड़ा करना, क्योंकि ईमानदारां दी गिनती बहुत थोड़ी है। हालेलुया। अगर तुसी दशवांश में ईमानदार हो तो स्वर्ग तुहाडे लिए खुलेगा और लोग देखणगे तुहाडी ब्लेसिंग्स नू। जे फाइनेंस में बदलना है तो दशवांश स्वर्ग नू खोलण दा द्वार है। जे आत्मा में बदलना है तब आत्मा में की गई प्रार्थना
और सेवक दे अधीन रहना आत्मा दे द्वारा स्वर्ग ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ द्वार है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखिया जे तुसी प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय ਉਹਦੀ 6 आयत पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय ਉਹਦੀ 6 आयत। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਰਕਤ ਯਸ਼ਬਿਆ ਔਰ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੂਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। वचन 5 4 से 5 है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन, उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे, श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे और हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट उस हैं। सिंहासन में से बिजलियां उस सिंहासन में से और बिजलियां गर्जन निकलते और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। आग के साथ दीपक जल रहे वे हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर दे सिंहासन दे सामने 7 आत्मावां रहंदियां हन और ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰithvi ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल रहने वाले लोग हो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे केड़ी आत्मा किस द्वारा काम करती है, केड़ी आत्मा किस द्वारा काम करती है, तद स्पिरिचुअल वर्ल्ड दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। हालेलुया। ते आत्मा दे विच कोई मार भी नहीं सकेगा। वचन च लिखिया बाइबल च लिखिया ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 अध्याय ਉਹਦੀ 2 ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਉਹ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। आराम नाल। पहली आत्मा यहोवा दी आत्मा। बोलो सारे जने इधर मेरे वाल देखो, जिन्हें पीछे बैठे आनो भी देखो। पहला बोलो, पहला यहोवा दा आत्मा, यहोवा दा आत्मा, यहोवा दा आत्मा, यहोवा दा आत्मा। सुनो, जदों दाऊद गया यहोवा दा आत्मा दाऊद दे नाल गया, उन्हें गोलियत नूं मार मुकाया। यहोवा दी आत्मा ने गोलियत नूं मार मुकाया क्योंकि दाऊद दे नाल यहोवा दा आत्मा गया सी। हालेलुया। आगे बढ़ो। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। इससे बुद्धि का आत्मा। नंबर 2 बुद्धि का आत्मा। सुलेमान ने परमेश्वर तो बुद्धि मंगी। परमेश्वर ने सुलेमान को कहा, सुलेमान तू जो नहीं भी मंगिया वो भी दिंदा हां। परमेश्वर ने सुलेमान को 2 आत्मावां दित्तियां, बुद्धि दा आत्मा ते समझ दा आत्मा। 2 आत्मावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਅੱਗੇ बढ़ो। युक्ति का आत्मा, युक्ति का आत्मा। हालेलुया। ये आत्मा यहोशू दे ऊपर आके ठहरिया सी। जदों यहोशू ने यरीहो शहर के ऊपर अटैक करना सी तब परमेश्वर ने यहोशू ते युक्ति दा आत्मा भेजिया और परमेश्वर ने यहोशू नूं युक्ति दित्ती और यहोशू दियां युक्तियां दे सामने राजा हैरान हो रहे सन। यहोशू दे उत्ते युक्ति दा आत्मा ठहरिया सी और युक्ति दी आत्मा दे कारण यहोशू जित्तिया। हालेलुया। आगे बढ़ो।
पराक्रम का आत्मा पराक्रम का आत्मा ਜਦੋਂ ਪਰਾਕਰਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੁੱਧ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਯੁੱਧ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਾਕਰਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਰ ਪਰਾਕਰਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇਗਾ। हालेलुया। आगे बढ़ो। और ज्ञान का आत्मा ज्ञान का आत्मा ज्ञान का आत्मा ये आत्मा मूसा ते भी ठहरिया सी, ये आत्मा परमेश्वर ने सुलेमान ते भी उतारिया सी और ये आत्मा दाऊद उत्ते भी उतारिया सी। ये आत्मा जदों सुलेमान ते उतारिया सुलेमान ने अद्भुत रीति दे नाल भवन नूं बनाया परमेश्वर दे भवन नूं बनाया और उसने अपने अद्भुत रीति नाल अपने महल नूं भी बनाया। उसने अद्भुत रीति नाल अपने नौकरां नूं रखिया, उसने अद्भुत रीति नाल अपने दासां नूं रखिया और अद्भुत रीति नाल जदों शीबा दी राणी देखण लई आई उन्हें कहा ये परमेश्वर दा ज्ञान है, ये मनुक्खां दा ज्ञान नहीं हो सकदा, ये परमेश्वर दा ज्ञान है जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। आगे बढ़ो। यहोवा के भय का आत्मा यहोवा के भय का आत्मा। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने अनुमति दी मैं तुहानू दसांगा ये आत्मावां किदां परमेश्वर अपने लोकां ते उतारदा है। हालेलुया हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੇਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੇਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕ ਅਚੰਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हालेलुया हालेलुया। वचन नु पढ़ो यशायाह दी पुस्तक 42 अध्याय और 1 आयत। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। परमेश्वर आखड़ा है मेरे दास को देखो जिन्हों मैं संभाल के रखा है। मेरे चुने हुए को परमेश्वर कहता है मेरे चुने हुए दास नु जिससे मेरा जी प्रसन्न है। परमेश्वर जिन्हों चुनदा है वो तो परमेश्वर खुश होता है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह दे लिए मसीनिक प्रोफेसी है। इस जगह पे यशायाह प्रभु यीशु मसीह के बारे लिख रहा है और प्रभु यीशु मसीह के बारे परमेश्वर कह रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने संतां ते सेवकां दे उत्ते भी अपना डर दा आत्मा रखदा है ताकि वो उन्हां नूं वधाए। ये डर दा आत्मा यीशु मसीह दे उत्ते भी सी। प्रभु यीशु मसीह ने पिता दे के प्रार्थना की, पिता हो सकता है कि टोरा टल जावे
फिर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार प्रार्थना की, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 32 ਆਇਤ। हाँ जी। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और मैं उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਜੋ ਅੱਗ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੇਵਕ, ਦੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ?
सेवकाई अपने आप नाल हो नहीं सकती, कोई अपने आप सेवक नहीं बन सकता। अगर बन भी गया तो धक्के ना चल सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। फिर जो कोई दुष्ट आत्मा का केस आएगा तो वो डंडा फड़ के कुटेगा या जुत्ती लेके कुटेगा, निकल दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा इतना नहीं निकलती। हालेलुया। इसलिए अगर पवित्र आत्मा तुहानू प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा दे नाल तुसी रहन वाले हो, तां तुहाडा आत्मा और पवित्र आत्मा जदों एक हो के प्रार्थना करनगे तां स्वर्ग तुहाडे लई खुल जाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। एक और सौखा तरीका है, एक तीसरा तरीका दस्सां। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा तरीका है जिहड़ा मैं तुहानू पहला दस्सिया सी कि तुसी प्रार्थना सारी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करे। अगर मेरे उत्ते स्वर्ग खुलिया, मेरे उत्ते खुलिया होया है, खुलिया नहीं, खुलिया होया है, तां तुहाडे ते ऑटोमैटिकली खुल जाएगा। आमीन। जे अभिषेक ट्रांसफर होता है, जे अनुग्रह ट्रांसफर होता है, जे सामर्थ ट्रांसफर होती है, तो जदों स्वर्ग खुलिया जाएगा कलीसिया दे उत्ते, चर्च दे उत्ते, तां तुसी खुले हुए स्वर्ग दी कलीसिया कहलाओगे यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया, हालेलुया। फिर बहुत सारी चीज़ों लिए तुहानू प्रार्थना करने की लोड़ नहीं पेगी। तुसी ये कहोगे मैं मन में सोचा ते हो गया। वो साइन होएगा, स्वर्ग खुल गया है। उस साइन होएगा, स्वर्ग खुला होया है। तुहानू मंगण की लोड़ नहीं पेगी, मंगण तो पहला परमेश्वर मुहैया कर देगा। बोलो आमीन। अपनी अखां नूं बंद करो। अगर तुसी बीते समय दे विच परमेश्वर दे अगे प्रार्थना नहीं कर सके, अगर तुसी परमेश्वर दे नाल नहीं चल सके, अगर तुसी परमेश्वर दे अगे प्रार्थना नहीं कीती और तुहाडा मन खेदित होया, तुसी नाराज होए, तुसी निराश होए और प्रार्थना विच नहीं रहे, तुसी लड़ाई कीती, तुसी झगड़ा मचाया, तुसी धूम मचाई, तो परमेश्वर तो माफी मंगो। परमेश्वर नूं कहो परमेश्वर अज मेरे ते दया कर, परमेश्वर मैनू माफ कर, मैनू अपने लहू नाल धो के साफ कर, मैनू पवित्र कर। खुदावंद आज मैं प्रार्थना करदा हां, मैं तेरे वचन दे अनुसार चलांगा। तू मैनू प्रार्थना करन दा आत्मा दे, पवित्र आत्मा ते यहोवा दा आत्मा। ओ रबा लेबा लमा नमा का सियंद्रलो लबा रियामा नमा हालबा रोबा लमा नमा गदला माओ रिहा नमा जालरबा लोगा रमा नमा नमा तलाबा लिमो नगा सियंद्रलो हाबा रबा लमा नगो जोरो हा हबा निहा सातलमा गदलबा लिबो रमा नमा लिमा नगलो रबा नमा हदलबा रोबा लबा रबा 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 हबा लमा नगो जालरबा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें माफ करें, हमें अपने लहू से धोकर पवित्र करें, हमें साफ करें परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सकें। परमेश्वर आपका आत्मा आज हम पर आकर ठहर जाए, यहोवा का आत्मा ठहर जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चल सकूं। मुझे प्रार्थना करने का फजल दे, अपना पवित्र आत्मा दे, आपका पवित्र आत्मा मुझे चलाए। मैं संसार की रीति पर चलना नहीं चाहता, मैं संसार की रीति पर चलना नहीं चाहती। जैसे लोग चलते हैं मैं वैसे चलना नहीं चाहता, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूँ। जैसे पतरस चला, जैसे यूहन्ना चला, जैसे पौलुस चला, मैं वैसे चलना चाहता हूँ। हे परमेश्वर आज अपने पवित्र आत्मा को मुझ पर भेज, आज मेरे लिए पवित्र आत्मा को खोल दे, आज मेरे हृदय में आ पवित्र आत्मा। मैं आपके अनुसार चलना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर चलना चाहता हूँ। आपके वचन मेरे लिए दीपक है, आपके वचन मेरे लिए उजाला है, आपके वचन मेरे लिए ढाल है, आप मेरे मुक्ति का सींग है, आप मेरी ढाल है, आप मेरे बचाने वाले परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर
परमेश्वर को खोल दे। ओ रियामा नामा नामा लगा रोबा रेमना का सालराता लो रामा हसियांदलो लेके रेके सेंदले मेरे पे ओ रबा लामा नमा का संदलता। परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावन से कहें, खुदावन आए मुझ पर दया कर दे, आए मुझ पर अनुग्रह कर दे, आए मुझ पर अनुग्रह किया हाथ बढ़ाएं परमेश्वर। प्रार्थना करें कलीसिया, प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रार्थना करें परमेश्वर से। वो सामर्थी परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो सामर्थी परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। उसका सामर्थी हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, उसका चंगाई का और छुटकारे का हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है। वो योग्य परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो करुणा करने वाला परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप पर दया करेगा। आप अनुग्रह को पाएंगे, आप सामर्थ को पाएंगे और परमेश्वर के सामने जो 7 आत्माएं रहती हैं वो परमेश्वर आप पर भेजेगा।